Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 14th lecture for the course of Principles of Communication System. So, let's see briefly what we did previously in the previous lecture this week. Okay, so we talked about what we covered prior to the lectures of this week. Okay, then so I'm not going to explain what did we cover previously in the previous weeks. So in yesterday's lecture we covered angle modulation. We saw what is frequency and phase modulation, and we discussed the representation, mathematical representation of AM and PM signals. We also did a few examples, maybe it was one or two examples regarding the uh, mathematical representation of these signals. I wanted to cover uh, the spectral characteristics of these angle modulated signals, but we couldn't cover it in yesterday's lecture. So the new topics that we are going to look at in this week, or in this regarding the angle modulation, they are spectral characteristics, and then implementation of angle modulators and demodulators, FM radio and TV broadcasting, mobile wireless telephone systems. I had briefly discussed each of this topic in the previous lecture. If you want to get an introduction or see what are we going to do in these topics, so you can just listen to the start of the previous lecture, and that is lecture 13. So let's start with the spectral characteristics of angle modulation schemes. Previously in yesterday's lecture, we saw what is the modulation index. Okay, we saw the relationship between the FM and a PM system. How these techniques they are similar to each other with some modifications. We saw how we just if we differentiate a FM signal, the message signal, and feed it to an FM frequency modulator, we can get a PM. And how that if you have a phase modulator and you just feed it an integrated message signal, you are going to get a frequency modulated signal. So we established that relationship. We discussed about the modulation indices, betas. Okay, then we discussed about narrow band angle modulation, and we discussed how they are related, how the narrow band angle modulation is related to the conventional AM, and we saw that they're very similar to each other, except for a very small difference. We discussed it in their phasor diagram also. So let's begin with the spectral characteristics of angle modulation schemes. So as I already told you in the previous lecture, that angle modulation schemes, they are non-linear. So because of their inherent non-linearity, we have discussed it that the characterization or spectral analysis, the characterization of their spectral properties is mathematically really, it's kind of intractable. So generally when you uh, derive this, you want to see the you want to do the spectral analysis of these kind of techniques, you you study just by modulating these the carrier wave with a simple modulating signal, and obviously you have to imply certain approximation, you have to apply them. Okay, you previously had a little glimpse at the phase modulation, and you know how we approximated the final modulated signal. We are going to have some sort of approximations involved here as well. Then obviously after this analysis on simple modulating or message signals, and with approximation, when we get the results or the spectral analysis of these signals with those approximations, we can then generalize them to more complicated message signals. So let's so
let's see the basic sinusoidal signal, and how when we use a basic sinusoidal signal to modulate uh, the to frequency or phase modulate our carrier. Let's see how, let's analyze by starting this thing. So till now we've seen that your message signal is your modulated signal looks something like this, okay, where this beta may be changed by it can be beta it is going to be beta p for phase and beta f for frequency modulation, and this beta in general is the modulation index for each of these modulation schemes. Now the message signal in this case is sine 2 pi fmt, that is the message signal is a simple sinusoid with a frequency fm. Now in the case of phase modulated signals, we know that the sine 2 pi fmt, we saw that in the previous lecture, that is it is going to be replaced by cosine of 2 pi fmt, that is the derivative of this signal, okay. uh, so the integral of this signal. So now let's apply Euler's relation. I hope you know the Euler's relation. We had talked about it in the classroom prior to the this pandemic and online classes. So applying this Euler's relation, if you don't know about Euler's relation, just simply Google it, check it in your book. If you have a signal and systems book, any kind of if you are studying discrete time signal processing, you can check there. You can see the Euler's relation this too, or you may find it in your uh, calculus book as well. So by Euler's relation, we can write this thing as the modulated signal as this one, okay. So आपके पास जो we know that अगर sin 2 pi fm t, इसका हमने देखा कि आपके पास periodic है ये with the time period of tm, ठीक है, it has a frequency of fm, this is a message signal, ठीक है जी, monotonic message signal है, उससे analyze कर रहे हैं. देन वो जो पिछली कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपके पास आया था वो भी आपके पास पीरियोडिक होगा विद द सेम टाइम पीरियड एंड दिस फ्रीक्वेंसी. व्हाट इफ वी वांट टू राइट दिस सिग्नल एज इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज की सिंथेसिस इक्वेशन यूज हो सकती है टू राइट certain signals, periodic, definitely periodic, certain periodic signals in this following form, ठीक है. Let's first discuss if we, how we want to compute the Fourier series coefficients of these signals. So Fourier series coefficients basically दो equations होती हैं आपके पास Fourier series representation अगर आप करना चाहें, Fourier series देखना चाहें किसी चीज की, एक equation होती है synthesis और एक होती है analysis. Analysis में synthesis में आपके पास एक unknown चीज आ जाती है which is the spectral coefficients, ठीक है जी, या मैंने आप Fourier series coefficients भी कहते हैं. तो एनालिसिस इक्वेशन में आप उस फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स को फाइंड करना चाह रहे होते हैं. सो in order to represent any signal using the Fourier series, first you need to know the compute the Fourier series coefficients. So let's compute the Fourier series coefficients using this equation where this is the actual signal x of t, ठीक है, m of t, ठीक है. ये टर्म और बाकी ये वाली जो चीजें हैं ये आपके पास आ गई ड्यू टू the formula of the एनालिसिस इक्वेशन ऑफ द फोरियर सीरीज, ठीक है. और इसमें आप देखेंगे अगर सिग्नल की ओपन आइम की बुक उठा के देख लें या डीएसपी की बुक उठा के देख लें, जो फोरियर सीरीज है मे बी वहां पे उन्होंने ओमेगा यूज किया इंस्टेड ऑफ एफएम, ठीक है, एफ इंस्टेड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी एफ इन हर्ट्ज, मे बी ओमेगा यूज किया वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. वो घबराने की जरूरत बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो यू कैन यूज एनीथिंग अगर आप वहाँ पे उसमें कंफर्टेबल हैं. यहाँ पे एफ एम की जगह रिप्लेस 2 पाई एफ एम बाय ओमेगा, बट इट्स बेटर टू स्टिक विद
this thing because it is going to be easy to understand this way because आगे सारी बुक में भी हम यही कन्वेंशन आगे इस चैप्टर में यूज कर रहे होंगे. सो एनी फोरियर सीरीज पे हमने थोड़ी बहुत बात भी की थी अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में बिफोर द पैंडेमिक. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल. सो ये आपके पास फोरियर सीरीज एनालिसिस इक्वेशन आ गई. यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं वो ये है कि ये जो 2 पाई एफ एम टी है इसे हम कह देते हैं कि दिस इज इक्वल टू यू. ठीक है, इसमें हमने इसे u से लिख लिया और देन इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. ये जो इंटीग्रल है फोरियर सीरीज एनालिसिस इक्वेशन का. अब ये जो आपके पास इंटीग्रल है इट इज अ वेरी वेल नोन थिंग, इट इज अ वेरी वेल नोन फंक्शन. ठीक है, और दिस इंटीग्रल इज नोन एज the Bessel function of first kind of order and it is denoted by Jn of beta. ठीक है जी, ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ऊपर ये वाली, ठीक है, इट इज अ वेरी वेल नोन फॉर्म. ठीक है, जिसे ये फंक्शन आप करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट अवर दिस थिंग यूजिंग हेयर. ठीक है जी, ये आपके पास वही ऊपर वाली टर्म है और इन टर्म्स ऑफ जब हमने इसे लिख लिया इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शन. सो नाउ ये जो इक्वेशन है ये आपके पास है बेसिकली फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन, जिसमें आप के ये आगे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट. ठीक है जी, और ये आगे वो हार्मोनिक्स. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास इक्वेशन है फोरियर सीरीज ये वहां से उसकी टर्म आ गई. ठीक है, दीज आर द हार्मोनिक्स जिनके साथ ये स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये जे एन ऑफ बी आपके पास ये वाला जो इंटीग्रल है इसे हमने कहा. ठीक है जी, सो दिस इज अ बेसल फंक्शन. ठीक है, so now we can write this signal as in the form of Fourier series representation as in this thing. ठीक है, अब पिछले पेज पे आपने इक्वेशन देखी थी 4.2.2. ठीक है, सो सिंपली हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास चीज है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो चीज है इसकी वैल्यू उस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं विच इज इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, सो उस इक्वेशन में जब हमने इसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ये चीज बन गया. ठीक है जी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब ये चीज बन गया वेयर अगेन वी हैव यूज्ड द आयलर आइडेंटिटी और हमने e रेज पावर j थीटा यू नो इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा. तो बिकॉज हम रियल वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो रियल वैल्यू विल बी द कोसाइन टर्म्स. तो इसलिए ये कोसाइन में हमने कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, e पावर j थीटा इज cos थीटा प्लस j sin थीटा. वहां से j वाली टर्म बिकॉज रियल पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं j वाली टर्म आपने उसे साइड पे कर दी और कोसाइन वाली टर्म आ गई. अब यहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है आपके पास वो आ गया ये चीज. ठीक है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ये तो आपके पास स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स आ गए, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड आ गया. यहाँ पे ये समेशन साइन आप देख रहे होंगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. और यहाँ पे ये चीज भी देख रहे होंगे n into fm. fm is the frequency of the your frequency or the bandwidth of your signal. ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है इस केस में. सो ये टर्म हमें क्या बताती है जी, सोचें इस बारे में. ये टर्म ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये nfm वाली. ठीक है, ये चीज आपके पास कैरियर है कोसाइन ऑफ 2 पाई दिस थिंग. ठीक है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है. n यहाँ पे देखें कहां से कहां तक जा रहा है, n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो n की वो वैल्यूज अगर आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या होगा, और समेशन है यू आर गोइंग टू हैव इनफाइनाइट मैनी हार्मोनिक्स, इनफाइनाइट मैनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और हार्मोनिक्स. ठीक है, बिकॉज n इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी where n is an integer. ठीक है, n always will be an integer in such a case. So this means कि आपके पास ये जो cosine है then multiples of fc and it is going to have a long infinite many frequency components this modulated signal. So this means कि bandwidth आपके पास एंगल मॉड्यूलेशन की कितनी आ गई, इनफाइनाइट. वो आपको इस इक्वेशन से पता लगी इसके एनालिसिस से.
इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ठीक है। इसलिए स्टार्ट में मैंने इफेक्टिव बैंडविड्थ की पिछले लेक्चर में बात की थी। स्टार्ट में इफेक्टिव बैंडविड्थ कैसे लेते हैं वो अभी हम देख रहे हैं कुछ, मे बी इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। So this is a very important result, this last equation. Now again वही बात के जो एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी ऑफ द फॉर्म एफ सी प्लस एन एफ एम, ठीक है। उसी इक्वेशन में लिखा हुआ कोसाइन ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस स्टफ, अगेन एन इज एन इंटीजर। सो जो एक्चुअल बैंडविड्थ आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की होगी इनफाइनाइट होगी, बट इसमें एक कह लें कि एक चीज है, वो ये है कि जो एम्पलीट्यूड होगा साइनोसाइडल कंपोनेंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स का, एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उसमें पावर कंटेंट कम होता जाएगा, ठीक है। यानी जो बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसीज होंगी, बड़ी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल इससे जनरेट होंगे, उनमें जो पावर कंटेंट है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है और इसी से हम इफेक्टिव बैंडविड्थ, इसकी पावर की बेस पे हम इफेक्टिव बैंडविड्थ वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। सो अगर बीटा की वैल्यू आपके पास स्मॉल है, बहुत कम है, तो देन वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन। ये आपके पास क्या है जी, बेसल फंक्शन है वही, और स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स की वैल्यू ये बताएगा आपको। और आप अप्रोक्सीमेट, बीटा की वैल्यू अगर कम है, छोटी है बीटा की वैल्यू, ठीक है, तो यू कैन अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ योर बेसल फंक्शन एज दिस थिंग। सो अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा की टर्म्स में बात करें और ये छोटा है अगर, सो द ओनली साइड बैंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू n equals 1 is important, ठीक है। just plug in the values and you will see, and also you will see that the symmetric properties of this Bessel function get j of minus nb will be equal to j of nb, ठीक है, when n is even, और जब n odd होगा तो इस केस में j of minus nb will be equal to minus jn of beta, ठीक है। वो आपने देखा था कि अभी हमने वो जब पिछले उसमें पिछले पेज की लास्ट इक्वेशन देखी है, उसमें n वाज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो वहां पे j ऑफ माइनस 2 3 4 माइनस 100 जो भी है वो भी आपको कंप्यूट अगर करना पड़े तो यू कैन कंप्यूट इट यूजिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जे एंड बीटा यहाँ पे, ठीक है, और यू कैन यूज इट कंप्यूटेड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम एक टेबल और एक देखते हैं, एक फिगर जिसमें आपको पता लग जाएगा कि दिस टेबल विल शो के कितने नंबर ऑफ हार्मोनिक्स चाहिए होते हैं टू इंक्लूड सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर, ठीक है। टोटल पावर जो एफ एम की है उसे भेजने में कितने कोफिशिएंट्स आपने भेजना है, कितने वो हार्मोनिक्स भेजना है, ठीक है जी। सो दिस इज द बेसल फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है जी। सो व्हेन n इज इक्वल टू 0 you get this kind of a thing, ठीक है, और and so on, ठीक है। let's talk about this thing, ठीक है जी। this is actually the key thing here, पावर परसेंटेज और बीटा की वैल्यू इस पर डिपेंडेंट लिखी है, ठीक है। सो अगर आपके पास बीटा, सो बीटा जितना कम होगा इट मींस मे बी बीटा 0.5 मींस काइंड ऑफ अ नैरो बैंड मॉड्यूलेशन ही होगी शायद, ठीक है। तो मे बी नॉट एक्चुअली, शायद ये नैरो बैंड ना हो, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज दैट काइंड ऑफ थिंग। सो जितना ज्यादा बीटा की वैल्यू बड़ी होगी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा ज्यादा होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा आपके पास इसकी कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिविएशन ज़्यादा होगी। सो जो पावर परसेंटेज है, और यहाँ पे ये पावर परसेंटेज है और यहाँ पे बीटा की डिफरेंट वैल्यूज हैं जी, ठीक है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 5 की बात कर लेते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 5 है, यहाँ पे देख लेते हैं जी। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 5 है आपके पास, तो 80% पावर आपके, अगर आपने 80% मॉड्यूलेटेड पावर ट्रांसमिट करनी है तो आपको 4 हार्मोनिक्स ट्रांसमिट करने पड़ेंगे। 98% करनी है तो यू नीड टू सेंड 6 हार्मोनिक्स, ठीक है। यानी n विल बी इक्वल टू
वो जो पीछे फार्मूला था उसमें फॉर 98% पावर व्हेन बीटा इज इक्वल टू 5 देन n विल बी इक्वल टू -6 all the way up to +6, ठीक है जी। और let's say when beta is equal to 15 then you need to have send 14 harmonics for beat for 80% power और 98% ट्रांसमिट करनी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर, तो देन यू नीड टू सेंड 16 हार्मोनिक्स, ठीक है जी। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल, ठीक है। अभी जो पिछली स्लाइड पे बात हुई है इसे हम दोबारा आगे जाके रिपीट करेंगे रिगार्डिंग बोथ द फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हम देखेंगे कैसे इफेक्ट होती हैं ये चीज़ें इन टर्म्स ऑफ ये हार्मोनिक्स और फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे एक दूसरे का इफेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है लेट द कैरियर बी गिवन बाय दिस इज द कैरियर सिग्नल एंड लेट द मैसेज सिग्नल बाय दिस थिंग। ये कैरियर आ गया जी, ठीक है, C of t और this M of t. Further assume that the message is used to frequency modulate the carrier with kf. kf की वैल्यू उसने दे दी, it is equal to 50. Find the expression for the modulated signal and determine how many harmonics should be selected to contain 99% of modulated signal power. दो काम। पहली चीज तो ये है कि कैरियर और मैसेज सिग्नल उसने बता दिया और कहता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है। kf की वैल्यू उसने दे दी, कहता मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एक्सप्रेशन आप बताएं क्या होगा और कितने हार्मोनिक्स हमने भेजने हैं अगर हम 99% पावर भेजना चाहे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। सो लेट्स सी फर्स्ट के जो कैरियर का पावर कंटेंट है वो कितना है। तो सिंपल है, यू नो हाउ वी कंप्यूट पावर ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। सो वी यूज दैट इंटीग्रल थिंग, ठीक है जी। इंटीग्रेट ओवर अ पीरियड वी गेट दिस पावर, ठीक है। वी विल सी के हमने एम में इसकी एक्सप्रेशन पे बात की भी थी और क्लास में आई गेस हमने पावर एनर्जी पे बात की भी थी। सो पावर आपके पास इस कैरियर की क्या आएगी, इट इज गोइंग टू बी AC स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और कोसाइन वाली टर्म यू नो ड्यू टू दैट इंटीग्रल एंड स्टफ विल बी यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इट। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, काफी दफा उस पर बात हो चुकी है। सो ये आपके पास आ गई 50 मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका। हमने कैरियर पावर कंप्यूट कर ली, ठीक है। टोटल आपके पास आ गई ये 50 वाट्स, ठीक है जी। सो यही आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी होगी। ट्रांसमिट कितना करते हैं इस पावर का वो ये कह रहा है कि 50 वाट्स में से अगर हम 99% ऑफ द पावर ट्रांसमिट करना चाहें कितने आपको हार्मोनिक्स यूज करने पड़ेंगे। सो हमने पहले कंप्यूट की टोटल पावर, उसके बाद हम कहते हैं जी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो जो उसका सेकंड क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन था। सो आपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखा जी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू दिस। ये वेल नोन फॉर्म है, इक्वेशन स्टार्ट में जो की थी पिछले लेक्चर में, वहां से देख लें। सो बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट अप टू दिस पॉइंट। कोई नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुई है and solving this stuff we get this thing. Now we need to compute the modulation index. तो modulation index जो आपके पास बीटा एफ होगा वो किस चीज के इक्वल होगा जी, के एफ इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। के एफ उसने हमें दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। के एफ उसने क्वेश्चन में हमें ये दे दिया, ठीक है। और मैसेज सिग्नल क्या चीज है, कोसाइन ऑफ 2 पाई टी, यानी कोसाइन का मैक्सिमम +1 होगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे वो 1 आ जाएगा। और एफ एम इज द बैंडविड्थ, सो एफ एम यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई, सो दिस इज एक्चुअली 20 पाई लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 20 पाई क्या चीज़ है, ये 20 पाई में अगर देखें तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 पाई एफ, ठीक है। सो वी नो कि यहाँ से एफ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एफ इज 10 हर्ट्ज, ठीक है। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 1, के एफ इज 50, सो 50 इंटू 1 इज 50 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 5। सो आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया 5 इसमें। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने निकाल लिया। मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी इन टर्म्स ऑफ
एक आपके जो क्वेश्चन का जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, ठीक है जी, कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल बताएं क्या होगा, वो हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं उसके दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है, उसके लिए चीज़ें थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं। तो कहता है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगेन इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं जी इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हमने ऐसी अभी थोड़ी देर पहले की थी। तो यहाँ पे ए सी कैरियर एम्पलीट्यूड इज 10, बीटा की वैल्यू 5 आ गई। सो दिस इज द थिंग नाउ दैट यू हैव बेसल फंक्शन, ये आ गया आपके पास बीटा की वैल्यू 5 के साथ। सो नाउ ये आपके पास है जी एफ एस प्लस एन एफ एम, ये वैल्यू 10 हर्ट्ज आपके पास एफ एम है, वही चीज लिखी है। अब हम देखेंगे कितने हार्मोनिक्स यहाँ से हमने निकालना है कि 99% हार्मोनिक्स के साथ पावर का क्या काम होगा। सो वी नो, अगर हम पावर की बात करें इस वाली एरिया में, यहाँ पे ये जो चीज है, ठीक है, 10 इंटू स्पेक्ट्रल कोफिशिएंट्स, सो 10 जे एन 5। सो पावर सिग्नल इज द, बेसिकली हम चीज़ों का स्क्वायर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं पावर निकालने के लिए। सो उसने इस कोसाइन वाली टर्म आपको पता है उसके साथ क्या होगा, ये वाली टर्म बी स्क्वायर होगी, सो ये 100 बन जाएगी और जे एन स्क्वायर बन जाएगा पावर की टर्म्स में बात करें। सो दिस इज द टोटल पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो कहता है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 99% ऑफ द टोटल पावर, ठीक है, दिस थिंग। सो अब इस पे आप कुछ ना कुछ वैल्यूज इनपुट दे सकते हैं, जस्ट ट्रायल एंड एरर, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट ये वैल्यू 50 इंटू 0.99 देखें तो ये 49.5 आती है, ठीक है जी। सो पहले क्या करें, n की वैल्यू लट से पहले n की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2, ठीक है, यानी +2 से -2 तक वैल्यू जाएगी। पुट करके देखेंगे यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे। आपको अभी थोड़ी देर पहले बेजल फंक्शन का एक टेबल होता है, बेजल चार्ट, उससे आप वैल्यूज देख लेंगे, ठीक है। सो एन की वैल्यू प्लस -2 -1 0 +1 एंड +2, यहाँ से ये वैल्यू कंप्यूट करेंगे, देखेंगे जी क्या वैल्यू आई है, ठीक है। वो जो भी वैल्यू आई है वो कम आएगी ये 49.5 वाट से, आपको इससे ग्रेटर देन या इक्वल चाहिए। सो फिर उसके बाद लट से n +-2 किया आपने, उसके बाद लट से n की वैल्यू आप बढ़ा दें, n की वैल्यू में भी आप बढ़ा के +-4 करके देखें, फिर कंप्यूट करें। सो हिट एंड ट्रायल मेथड है। जैसे ही आपके पास चीज़ आई, यहाँ पे ये नीचे पैरा पढ़ लीजिएगा कैसे हमने वो अचीव किया। तो यू आर गोइंग टू गेट, जब ये रिजल्ट आ गया तो n की वो वैल्यू होगी, ठीक है, हमें n ही फाइंड आउट करना है। सो आप बता देंगे जी इतने हार्मोनिक्स हैं जिनमें इतनी पावर आएगी, ठीक है जी। बात समझ होपफुली आपको आ गई होगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसे के n6 +-6 अगर आप लें, ठीक है, यानी बेसिकली नेगेटिव इज नथिंग, वो तो मैथमेटिकली ईज है। सो उससे ऊपर पॉजिटिव जीरो एंड पॉजिटिव वाली साइड पे आपकी वैल्यू। सो यू विल से के ये जब वैल्यू होगी n की, ये k कह रहा बिकॉज ऑफ मे बी दिस थिंग, सो देन यू कैन गेट आपकी ये वाली कंडीशन, उसका दूसरा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। गिव इट अ रीड दिस पैराग्राफ। सो ये जो आपके पास फिगर्स बनी हुई है, ठीक है, फिगर बनी हुई है, एक ही सिंगल फिगर है, ये आपको अब बता रही है कि यार ये पिछले एग्जांपल की फिगर, ठीक है, उसमें ये बता रही है दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास आ गई जी कैरियर फ्रीक्वेंसी ये, और ये -fc आ गया, ठीक है, ये -fc +fc आ गया। और देन उसके बाद पहली टर्म आ गई fc +fm, ये दूसरी टर्म आ गई fc -fm, ठीक है। देन ये आ गई fc +2fm, fc -2fm, fc +3fm एंड fc -3fm, ठीक है। यानी कि वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है जी। सो ये हार्मोनिक्स और उनके एम्पलीट्यूड्स आ गए, फ्रीक्वेंसीज आपको पता है।
सो टोटल बैंडविड्थ आपकी होगी एक्चुअली 10 हर्ट्ज का टोटल सिग्नल था, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ सिर्फ 10 हर्ट्ज थी, और जो फाइनल बैंडविड्थ आई आपके पास एफएम की वो कितनी आई 120 हर्ट्ज। सो कन्वेंशनल एएम से अगर इस सिग्नल को भेजते आप तो बैंडविड्थ कितनी आनी चाहिए थी जी, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ 10 हर्ट्ज है, तो कन्वेंशनल एएम से 20 हर्ट्ज आती। अब हम 6 टाइम ज्यादा बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एएम, बट नॉइज सप्रेशन क्योंकि इसमें सुपीरियर है, बाकी एडवांटेजेस आपको पता है, सो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है जी। और इन जनरल अगर हम इफेक्टिव बैंडविड्थ की भी बात कर लेते हैं कि इफेक्टिव बैंडविड्थ अगर आप दिन देखनी है एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की विच कंटेन्स एटलीस्ट 98% ऑफ द सिग्नल पावर, सो इस केस में ये जो 120 हर्ट्ज है दिस इज द इफेक्टिव बैंडविड्थ। एक्चुअल बैंडविड्थ तो इनफाइनाइट है अगेन, बट वी आर, हमने कहा कि हम यार 99% पावर जितनी बैंडविड्थ में जा रही है हमारे लिए वो काफ़ी है, पिछले एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़े, सो दिस बीसी इज द इफेक्टिव बैंडविड्थ। अच्छा, वो कहता है कि जनरली अगर आप 98% सिग्नल टर्म्स की बात करें कि 98% ऑफ द सिग्नल पावर ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, तो इफेक्टिव बैंडविड्थ के लिए आप फार्मूला एक यूज़ कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये आपके पास बीटा आ गया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा पी बीटा एफ फॉर फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम इज द सिग्नल बैंडविड्थ, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ। यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपना जो भी बैंडविड्थ इफेक्टिव बैंडविड्थ है टू व्हिच विल बी नेसेसरी टू ट्रांसफर 98% ऑफ द सिग्नल पावर। ठीक है जी। सो let's see the effect of amplitude and frequency of the sinusoidal message on the bandwidth and the number of harmonics। ठीक है, तो हम देखेंगे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। ठीक है, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स और बैंडविड्थ के साथ इसका क्या रिलेशन है। सो हम कहते हैं लेट्स से कि आपके पास मैसेज सिग्नल है ये चीज, देन यूजिंग दोज प्रीवियस इक्वेशंस यू कैन फाइंड आउट द बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो अभी हम इसके बाद जब बैंडविड्थ की बात करेंगे तो आई विल मीन इफेक्टिव बैंडविड्थ। ठीक है, यू विल नो के बैंडविड्थ इन एक्चुअल, या अगर देखें उस तरह से तो वो तो इनफाइनाइट होती है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्टिव बैंडविड्थ। तो इफेक्टिव बैंडविड्थ की अगर बात करें, वी सॉ द फॉर दिस फार्मूला ऑन द प्रीवियस स्लाइड, सो इट इज फॉर पीएम इट इज इक्वल टू दिस थिंग, फॉर एफएम इट इज इक्वल टू दिस थिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंडविड्थ इज आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स के साथ और मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा ये दोनों होंगे उतना ज़्यादा आपका बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। और देन बट मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट कोई नहीं आता बैंडविड्थ पे इन केस ऑफ पीएम, वेयर एज rather it is also linearly it will change the bandwidth। ठीक है जी, एफएम भी यहाँ पे, so in the case of fm it is a bit of a complicated relation। ठीक है जी, so in the case of fm this is only an additive increase। ठीक है, और जो अगर बीटा की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सब्सटेंशियल थिंग। ठीक है, ये पैरा जरा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वही बातें जो मैंने की हैं, बट मे बी आई हैव मिस समथिंग। सो लेट्स लुक एट द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इन द बैंडविड्थ इंक्लूडिंग द कैरियर। ठीक है, कैरियर भी इस हार्मोनिक्स में इंक्लूड किया, एंड लेट्स डिनोट द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बाय एमसी। ठीक है, ये एमसी डिनोट करता है आपके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। सो एमसी वो कहता है दिस इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, सिंपल फार्मूलाज हैं। सो बात आ जाती है यहाँ पे आपके पास इन दो फिगर्स की। सो ये साइड है पीएम। ठीक है, हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इफेक्ट क्या होगा ऑफ डबलिंग द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज इन एफएम एंड पीएम। तो पीएम पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो थोड़ी सी आपके पास क्या हुआ, हार्मोनिक्स थोड़े से शिफ्ट हुआ है। ठीक है,
थोड़े से उसमें उनका जो ये जो टर्म थी एफ सी प्लस एफ एम, क्योंकि एफ एम चेंज हुई, सो इनमें जो ये विड्थ थी ये चेंज होगी, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो चेंज होगा, अलबत्ता हार्मोनिक्स उतना ही रहे। ठीक है, सो जो आपके पास पी एम है उस केस में एफ एम को अगर इंक्रीज करता है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, और अगर आप इसी चीज को देखें और कंपेयर करें विद एफ एम, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे देखें तो इंक्रीजिंग एफ एम डायरेक्टली इम्प्लाइज कि आपके पास हार्मोनिक्स कम हो रहे हैं, आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है, बट आपकी जो हार्मोनिक्स हैं ये लीनियरली कम होंगे। ठीक है जी, और इन द केस ऑफ पीएम अगेन क्या हो रहा है, हार्मोनिक्स उतने ही है, सिर्फ उनके दरमियान स्पेसिंग ये ज्यादा हो रही है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पीएम के केस में ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर जी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसी स्पेक्ट्रल एनालिसिस को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। ठीक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।